Hello students. So we are continuing with differentiation composite function exercise 1.1. We have already completed with the first group and the second group of sums. Now we are starting with the third group of sums. As you know, I have already marked many sums, so we'll continue doing these sums of group number 3. So here again we are supposed to differentiate the following with respect to x. So starting with the sums there. Next we are looking at sum number 10 of group 3. Here this is y is equal to, हमें दिया है y is equal to e raised to 2x minus e raised to minus 2x divided by this is e raised to 2x plus e raised to minus 2x. नाउ वेन एवर देर इज अ नेगेटिव पावर, यहाँ पे अगर हम देखेंगे नेगेटिव पावर है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, ये हमें नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी के पॉजिटिव टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे. सो दैट इज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय ई रेज टू 2x डिवाइड बाय ई रेज टू 2x. तो हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया. दैट विल गिव अस y इज इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 2x. ये पूरा टर्म न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है, द वैल्यू इज ई रेज टू 4x. इट इज ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू 2x. लॉ ऑफ इंडाइसिस अप्लाई किया, माइनस, नाउ हियर ई रेज टू 2x इंटू ई रेज टू माइनस 2x. ये हो जाएगा ई रेज टू 2x माइनस 2x, मतलब हो जाता है ई रेज टू 0, और ई रेज टू 0 का वैल्यू होता है 1. सो विल डायरेक्टली राइट दिस एज 1. डिनोमिनेटर में भी वही हो जाएगा ई रेज टू 4x प्लस 1. अब हम अप्लाई करेंगे u अपॉन v का फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x, that will give us dy by dx is equal to, this is e raised to 4x plus 1 into derivative of e raised to 4x minus 1 minus this is e raised to 4x minus 1 into derivative of e raised to 4x plus 1 whole upon e raised to 4x plus 1 whole square. Now differentiating, ये हो जाएगा e raised to 4x plus 1 as it is. अब e raised to fx का डेरिवेटिव फॉर्मूला हमारे पास है, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाता है e raised to fx मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ x. सो लेट्स अप्लाई इट ओवर हियर. ये हो जाएगा e raised to 4x into this is डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस, ये हो जाएगा e raised to 4x माइनस 1. अब डेरिवेटिव यहाँ पे हो जाएगा e raised to 4x e raised to 4x into this is derivative of 4x whole upon this term as it is e raised to 4x plus 1 whole square. अब कैलकुलेट करते हैं इसको. So that is going to give us, here derivative of 4x निकालना है, तो ये हो जाएगा e raised to 4x plus 1 into this is e raised to 4x into derivative of 4x हो जाएगा 4 minus this is e raised to 4x minus 1 into e raised to 4x. derivative of 4x हो जाएगा वापस से 4 whole upon this is e raised to 4x plus 1 whole square. अब कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर से जो टर्म कॉमन आ रहा है. सो यहाँ पे कॉमन आ रहा है e raised to 4x इज कॉमन एंड 4 इज ऑल्सो कॉमन. बचे हुए टर्म्स हम लिख लेते हैं. यहाँ पे बचा है e raised to 4x प्लस 1 माइनस साइन के साथ ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, तो हमें मिलता है माइनस e raised to 4x प्लस 1 होल अपॉन this is e raised to 4x plus 1 whole
स्क्वायर. यहाँ पे e raised to 4x कैंसिल हो जाएगा. So this e raised to 4x and this e raised to 4x get cancelled. Remaining term over here is 1 plus 1 हो जाएगा 2. This 1 plus 1 is 2. 2 into 4 हो जाता है 8. This is e raised to 4x divided by e raised to 4x plus 1 whole square, and that is the answer. I hope you are understanding how the sums are done. Let's take another question from this group again. Now this is little different type of sums. Now what is different over here? Okay. The sum given over here is y is equal to, this is, so the sum given is y is equal to log of tan cube x into sine raised to 4x into x square plus 7 whole raised to 7. अब ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम्स हम कर रहे हैं ये थोड़े अलग टाइप के सम्स है. यहाँ पे लॉग दिख रहा है. सो वेन एवर देर इज अ लॉग गिवन, हमारे पास लॉगरिथम के रूल्स भी हैं. तो हम पहले लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करेंगे और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे देन द टर्म विल बिकम वेरी ह्यूज and it will be difficult for you to solve the sum. So first apply the logarithmic rules and then go for the differentiation. So let's consider y is equal to, here we are given y is equal to log of, this is tan cube x into this is sine raised to 4x into this is x square plus 7 whole square. अब लॉगरिथम वी नो लॉग ऑफ a इंटू बी हम लिख सकते हैं log ऑफ a प्लस log ऑफ b, राइट. सो लेट्स अप्लाई इट ओवर हियर. उसके बाद हमने लर्न किया था log ऑफ a रेज टू m, सो दैट इज m टाइम्स log ऑफ a. सो विल अप्लाई ऑल दीज रूल्स ओवर हियर. अप्लाइंग द रूल, ये हो जाता है log ऑफ tan क्यूब x प्लस ये हो जाएगा log ऑफ साइन रेज टू 4x प्लस ये हो जाएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर. रिमेंबर लॉगरिथम में अगर मल्टीप्लिकेशन है ये कन्वर्ट करता है एडिशन में. अगर डिवीजन होता दैट इज log ऑफ a डिवाइड बाय b, तो हमने देखा ये हो जाता है log ऑफ a माइनस दिस इज log ऑफ b. डिवीजन में रहेगा तो माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन होता है. नाउ लेट्स अप्लाई दिस रूल अगेन ओवर हियर. तो ये हो जाएगा 3 इंटू दिस इज log ऑफ tan ऑफ x प्लस 4 इंटू दिस इज log ऑफ साइन ऑफ x प्लस ये हो जाएगा, सॉरी आई हैव रिटन 2, इट शुड बी 7. दिस इज 7 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7. अब सबका पावर चला गया. नाउ द सम हैज बिकम मच इजियर. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. सो वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x एंड दैट विल गिव अस नाउ dy by dx is equal to 3. log ऑफ fx का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन fx into this is derivative of fx प्लस 4 log ऑफ साइन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ x एंड देन इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 7 log का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इंटू दिस इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7. हर जगह पे हम अप्लाई कर रहे हैं log ऑफ एफ एक्स डेरिवेटिव फॉर्मूला. log ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर अप्लाइंग एवरीवेयर ओवर हियर. So that value is 3 divided by tan of x. Derivative of tan x हो जाता है sec square x plus this 4 divided by sin x as it is. sin x का डेरिवेटिव हो जाता है cos of x plus this is 7 divided by x square plus 7.
और ये ब्रैकेट में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, 7 का डेरिवेटिव 0. नाउ विल डू अ लिटिल कैलकुलेशन. दिस वैल्यू इज 3 डिवाइड बाय tan को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ x डिवाइड बाय कॉस ऑफ x. सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस दिस इज 4 कॉस ऑफ x डिवाइड बाय साइन ऑफ x हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ x प्लस 7 टू सा हो जाता है 14x डिवाइड बाय दिस इज x स्क्वायर प्लस 7. नाउ हियर वन ऑफ द x cos get cancelled, so that value is 3 into 1 upon sin x को हम लिख सकते हैं और you can write this term as divided by this is sin of x into this is cos of x plus this is 4 into cot of x plus this is 14x divided by x square plus 7. अब ये वाले टर्म में अगर हम देखें, if you look at the first term here, ये जो हमारा पहला टर्म है, तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो इसमें से हमारे पास 2 नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल जस्ट मल्टीप्लाई बाय टर्म बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. तो ये वैल्यू हो जाता है 2 3 जा 6 डिवाइड बाय ये वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस बाकी ये दोनों टर्म को हम कुछ नहीं करेंगे. सो दिस इज 4 इंटू कॉट ऑफ x प्लस दिस इज 14x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7. अब 1 अपॉन साइन हमें पता है 1 अपॉन साइन हो जाता है कोसेक 2x plus this is 4 into this is cot of x plus this is 14x divided by x square plus 7, and that is the answer. Again, I hope you are understanding how we are applying the formula. That is why the formulas are very important. मैंने last time ही आपको बोला था, please go through the formula again and again so that you don't forget it and we can apply them. Let's look at next question. अब ये क्वेश्चन में भी लॉगरिथम दिया है, राइट. द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू दिस इज log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 5x बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 5x बाय 2. सो विल अप्लाई लॉगरिथम रूल्स. लेकिन अगर हम ये रूट के अंदर देखते हैं, इफ यू लुक एट द टर्म इनसाइड द रूट, तो ये तो हो गया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा. 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. उसी तरह से डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. सो वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूलाज ओवर हियर फॉर दिस सम. सो लेट्स कॉल द टर्म एज y. तो हम इसको लेते हैं y टर्म. This is y is equal to the value is log of root of this is 1 plus cos of 5x by 2 whole upon 1 minus cos of 5x by 2. हाँ, applying these two formulas inside the root, तो ये हो जाता है log of root of, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, ये हो जाएगा 5x डिवाइड बाय 4. सी, थीटा के जगह पे हमने डाला है 5x डिवाइड बाय 2 अपॉन 2. सो 2 into 2 will give us 4 over here. So this is how it is calculated. Now denominator भी हो जाएगा. This is 2 into sin square. This is 5x divided by 4. Let me put a bracket here. अब 2 get cancel. So that value is equal to this is log of root of cos divided by sin. Cos divided by sin हो जाता है cot and there is a square, तो हम इसको लिख सकते हैं cot square of 5 divided by 4.
स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, हमें मिलता है y इज इक्वल टू log ऑफ cot ऑफ 5x डिवाइड बाय 4। नाउ द टर्म हैज बिकम वेरी सिंपल। दिखने में इतना डिफिकल्ट दिख रहा था, अब ये बहुत सिंपल हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो दैट विल गिव अस द वैल्यू dy बाय dx इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन cot ऑफ दिस इज 5x डिवाइड बाय 4 into this is derivative of cot of 5x divided by 4. So now what happens there? So that value is equal to, ये वैसे ही रहेगा, this is 1 upon cot of 5x divided by 4 into derivative of this cot का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर, सो लेट्स अप्लाई हियर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर, this value is 5x divided by 4. Now there is a minus sign, so we'll put a bracket into derivative of fx. So formula तो वही हमारा derivative of cot of fx. So derivative of cot of fx हो जाता है minus cosec square fx into f dash of x. Now I will directly write the derivative of 5x divided by 4. तो 5x divided by 4 का derivative होता है 5 by 4. Now why I am applying it over here is, later on we are going to see many sums where the derivative will come in chain, so at that time you can directly apply the derivative. So that value is minus, this value is 1 upon, this is cot of 5x divided by 4. ये cot को हम convert कर लेते हैं, so cot को हम लिख सकते हैं cos of 5x divided by 4 होल अपॉन, ये हो जाएगा sin of 5x divided by 4 मल्टीप्लाई में। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाय 4 इनटू दिस 5 अपॉन 4 एज इट इज। इसको हम फिलहाल कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कैंसिलेशन, वन ऑफ द साइन गेट कैंसिल, सो रिमेनिंग टर्म हम लिख लेते हैं, सो दैट इज माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 इनटू, यहाँ पे बचा हुआ है द टर्म रिमेनिंग ओवर हियर, यहाँ पे एक साइन बचा है तो साइन ऑफ 5x डिवाइड बाय 4 इनटू यहाँ का कॉस बचा है जो है कॉस ऑफ 5x डिवाइड बाय 4। अब ये प्रीवियस सम जैसा हो गया, राइट। सो फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये जो 4 है हमारे पास, दिस 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, तो हम वो 4 को लिख रहे हैं 2 इंटू 2। विल राइट दिस एज 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 5 डिवाइड बाय दिस इज 2 इंटू साइन ऑफ 2 टाइम्स 5x बाय 4। अगेन वी आर अप्लाइंग फॉर्मूला, साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। सो थीटा के जगह पे आप कितना है 5x डिवाइड बाय 4 है, सो यहाँ पे भी पुट करो तो आपको मिल जाता है 2 टाइम्स 5x डिवाइड बाय 4। सो अप्लाइंग इट ओवर हियर, सो दैट वैल्यू इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 1 जा, दिस इज 2 2 जा गेट कैंसिल, दिस इज माइनस 5 डिवाइड बाय दिस इज 2 इनटू साइन ऑफ 5x डिवाइड बाय 2। अब 1 अपॉन साइन है तो 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं माइनस 5 अपॉन 2, 1 अपॉन साइन इज सेम एज कोसेक ऑफ 5x divided by 2 and that is the answer. I hope you are understanding. सिर्फ फॉर्मूला याद रखो तो आपको ये सब इजी लगेगा। Let's take another question. Now here we are taking sum number
16 of group number 3. So again यहाँ पे भी logarithm दिख रहा है, तो we'll call this term as y is equal to, this is a log of, this term I'm writing as it is. So this is 4 raised to 2x, 4 raised to 2x into this is x square plus 5 divided by root of 2x cube minus 4, this bracket raised to 3 by 2. अब लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करते हैं. सो स्टार्टिंग विथ लॉगरिथम रूल्स. सो ये हो जाएगा log ऑफ 4:2x प्लस ये हो जाएगा log ऑफ दिस वैल्यू इज सेम एज दिस इज x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 होल रेज टू 3 by 2. सो अगेन अप्लाइंग लॉगरिथम रूल, ये हो जाएगा log ऑफ 4:2x. सॉरी यहाँ पे रूल अप्लाई कर रहे हैं. सो एज वी अप्लाई द रूल, ये हो जाएगा 2x इंटू दिस इज log ऑफ 4 प्लस ये हो जाएगा 3/2 इंटू दिस इज log ऑफ, ये है x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाय दिस इज 2x क्यूब माइनस 4 होल रेज टू हाफ. वी कैन राइट इट इन दिस वे. रूट है तो रेज टू हाफ लिख सकते हैं. ना अगेन ये ब्रैकेट जो है हमारे पास, दिस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के लिए हम वापस लॉगरिथम रूल यूज करते हैं. सो दिस वैल्यू इज 2x इंटू दिस इज log ऑफ 4 माइनस दिस इज 3/2 इंटू ये हो जाएगा log ऑफ दिस इज x स्क्वायर प्लस 5 माइनस दिस इज log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 रेज टू 1/2. अब और एक बार लॉगरिथम रूल अप्लाई होता है फॉर दिस ब्रैकेट. सो विल अप्लाई लॉगरिथम रूल, तो ये हो जाता है 2x इंटू दिस इज log ऑफ 4 प्लस दिस इज 3/2 इंटू दिस इज log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा 1/2 इंटू दिस इज log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4. आप चाहिए तो आप ब्रैकेट ओपन कर सकते हो या फिर डिफरेंशिएशन करने के बाद ओपन करते हैं. सो लेट्स डिफरेंशिएट दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x. सो एज वी डिफरेंशिएट द टर्म हमें मिल जाता है dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज log 4 is a constant term, 2 is a scalar, so log 4 into this 2 becomes a scalar. ये हो जाएगा 2 into log of 4. और ये जो x हमारे पास है, this x, ये x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1. So will not write that one. प्लस ये हो जाएगा 3/2 as it is into लॉगरिथम का डेरिवेटिव हो जाता है 1/x स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 5. सो x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x, 5 का डेरिवेटिव 0. आई हैव रिटन डायरेक्टली, यू कैन आल्सो डू इट इन द एग्जाम्स, इट विल सेव योर टाइम. सो इट इज 1/2. ये भी हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, सो दैट वैल्यू इज 2x क्यूब माइनस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब. सो 2x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 6x स्क्वायर माइनस 4 का डेरिवेटिव 0. Now little bit of more calculation. This is 2 into this is a log of 4 plus this is 3/2 into this value is 2x divided by x square plus 5 minus this is 1/, कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पे तो हम कैंसिलेशन कर लेते हैं. तो ये वैल्यू हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज 2x क्यूब माइनस 4. Now we can open up the bracket with this 3/2 or you can keep the answer as it is. So that is the answer. अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिस इज 2 टाइम्स log ऑफ 4 प्लस दिस इज 2 कैंसल हो गया तो ये हो जाता है 3x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 5 माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाता है 9x स्क्वायर डिवाइड बाय
ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2x क्यूब माइनस 4. So either you can keep it this way or you can open up the bracket, and that is done with this sum. Now one more question from this group and the remaining sums will be your assignment. Now one more question. Here we are given y is equal to 25 raised to, I'll just write down the sum. This is y is equal to 25 raised to log of sec of x to the base 5 minus this is 16 raised to log of tan of x to the base 4. अब दिखने में ये बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं वैसे. लास्ट ईयर वी हैव लर्न सम रूल्स ऑफ लॉगरिथम, या फिर लॉगरिथम में ही ये हमने लर्न किया था a रेज टू log of x to the base a. So that will give us whenever this base and this base is same, the value is equal to x. So we'll apply it for both the terms. ये दोनों टर्म के लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन यहाँ अगर हम देखें हमारे सम में, तो सम में the base over here is 25, here it is 5, here it is 16, here it is 4. तो यहाँ पे तो प्रॉब्लम लग रहा है लेकिन है नहीं होता. 25 we know 25 is 5 square. So 25 को हम लिखते हैं 5 square. So that value is, this is 5 square whole raised to, this is a log of sec of x to the base 5 minus 16 को हम लिख सकते हैं 4 square whole raised to, this is a log of tan of x to the base 4. अब लॉगरिथम का रूल, सॉरी एक्सपोनेंट का रूल अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5 रेज टू, दिस इज 2 टाइम्स log of sec of x to the base 5 minus this is 4 raised to 2 times log of tan of x to the base 4. अब लॉगरिथम रूल, log of a raised to m is equal to m times log of a, तो ये अप्लाई कर सकते हैं. we'll apply it over here. ये हो जाएगा 5 raised to, this is log of sec square x to the base 5 minus this is 4 raised to, ये हो जाएगा log of tan square x to the base 4. अब दोनों का बेस ऐसा हो गया. We can apply this formula here also and here also. So let's apply it. After applying the formula, we are going to get the value is equal to, यहाँ पे बचता है sec square x minus this is tan square x. अब हमारे पास आइडेंटिटी है 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. So therefore we can say sec square theta minus tan square theta minus tan square theta is equal to 1. So this value is equal to 1. हमें मिला y is equal to 1. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं with respect to x and we get dy by dx is equal to 0 and done. ये सम दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा था लेकिन उतना बड़ा है नहीं. But only thing is you should know the formulas, otherwise it's going to be difficult for you. So I think we'll stop over here for the day, students. And whatever sums are remaining of the group 3 are your assignments. Please try and complete them. So we'll stop here. Have a nice day. Thank you.